हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को फिजिक्स की सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाने जा रही हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे मार्क्स भी अच्छे से गेन होते हैं। इसलिए हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ध्यान देकर अच्छे से पढ़ना है। इन physics, these three systems are the languages we use to measure the world. They are categorized based on how they handle the three fundamental dimensions: length, mass, and time. In first, MKS system, metric versus SI. The MKS system is the most widely used system in science and engineering today. It forms the basis of the International System of Units, SI. It is preferred because it uses a base 10 decimal system, making conversion much simpler. M meter for length, K kilogram for mass, S second for time. As for example, if you are calculating the force of a car engine, you would use newtons, which is derived from this. Second, CGS system, Gaussian. The CGS system is also metric but uses smaller base units. While it has mostly been replaced by MKS, it is still frequently used in theoretical physics, electrodynamics, and chemistry because it can simplify certain mathematical formulas as C centimeter for length, G gram for mass, S second for time. As for example, in a lab setting, a chemist might measure the density of a liquid in grams per cube centimeter rather than using the much larger kilogram. In third, FPS system. FPS system, British Imperial. The FPS system is the old school system. Primarily, this system is used in the United Kingdom historically and the United States. Unlike the metric system, it doesn't based on powers of 10, which makes the math a bit more fun. F foot for length, P pound for mass. Technically, the slug is the unit of mass in some variations, while the pound in force. S second for time. As for example, if you are looking at a
speedometer in the US, you will see miles per hour, and construction workers often measures wood in the feet and inches. So that quick comparison table: system, length, mass, time, unit of force. MKS, length of MKS meter, mass of MKS kilogram, time of MKS second, unit of force MKS Newton. CGS, length of CGS centimeter, mass of CGS gram, time of CGS second, unit of force of CGM dyne. FPS, length of FPS foot, mass of FPS pound, time of FPS second, and unit of force of FPS पाउंडर। अब इस यूनिट्स को हम हिंदी में पढ़ेंगे। भौतिकी यानी फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक या यूनिट कहते हैं। समय के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मानक पद्धतियाँ विकसित हुई, जो मुख्य रूप से 4 प्रसिद्ध मात्रक पद्धतियाँ हैं। एक में सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। इसमें छोटी मापों का उपयोग होता है। लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम, समय सेकेंड। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो वह सीजीएस पद्धति में है। सेकेंड में है एफपीएस पद्धति, फुट, पाउंड और सेकेंड। इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। यह आज भी कुछ देशों में व्यवहारिक रूप से उपयोग की जाती है। इसमें लंबाई फुट, द्रव्यमान पाउंड, समय सेकेंड। उदाहरण के तौर पर हम अक्सर अपना वजन पाउंड में या केक का वजन पाउंड में मापते हैं। एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यह सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है और इंजीनियरिंग कार्यों में अधिक उपयोग होती है। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकेंड। एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसे 1971 में स्वीकार किया गया था। यह एमकेएस पद्धति का ही संशोधित और विस्तृत रूप है। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। इसका तुलनात्मक तालिका निम्नलिखित है। पद्धति, लंबाई, द्रव्यमान और समय। सीजीएस की लंबाई सेंटीमीटर,
द्रव्यमान ग्राम और समय सेकंड। FPS की लंबाई फुट, द्रव्यमान पाउंड और समय सेकंड। MKS का MKS की लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड। SI की लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही रहता है। बाकी और सब चेंज हो रहा है, लेकिन समय का जो मात्रक है वो सेकंड ही है। इस तरह से आज हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, सो दैट इसे ध्यान दे करके अच्छे से पढ़ाई करना है। इसमें बहुत सारे MCQ भी बनते हैं, जो अगले क्लास में मैं इस पे MCQ लाऊंगी। थैंक यू।